پاکستان سے پھر بری خبر ہے جی. پاکستان میں ایک اور شخص کو موب لنچ کر دیا گیا ہے. اس بار ایک پی ٹی آئی کا جلسہ ہو رہا تھا. اس جلسے کے اندر ایک شخص نے عمران خان سے حضرت محمد کو کمپیئر کر دیا. تو یہ سبوق سید کی خبر ہے. تقریباً 1 گھنٹہ بھی ابھی اس کو نہیں ہوا. مردان سوال ڈھیر میں تحریک انصاف کے یکجہتی جلسے کے دوران 40 سالہ مولانا نگار عالم نے عمران خان سچا آدمی ہے, میں اس کی پیغمبر کی طرح عزت کرتا ہوں. اشتعال پھیلا, پولیس آئی, علماء سے مذاکرات شروع ہوئے. اسی دوران لوگوں نے نگار کو لاتوں مکوں ڈنڈوں سے مار مار کے ہلاک کر دیا. ٹھیک ہے جی. تو یہ حالات ہیں بھائی, اتنے برے حالات ہیں کہ آپ یہ بات سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی شخص بچے گا. یہ بہت ہی گرافک ویڈیوز ہیں, میں جان بوجھ کے ان کو آپ لوگوں کو نہیں دکھاؤں گا, مگر یہ حالات ہیں کہ بالکل کسی صورت بھی کسی شخص کے منہ سے یہ بات نکلی کہ یہ مطلب کتنی گھٹیا بات ہے کہ اس بندے نے صرف یہ کہا کہ ہاں میں اس کی رسول اللہ کی طرح عزت کرتا ہوں. تو یار رسول اللہ کی عزت کرتا ہے وہ کون سا کہہ رہا ہے میں رسول اللہ کی طرح بےزتی کرتا ہوں؟ اس نے تو یہ کہا ہے نا میں رسول اللہ کی طرح عزت کرتا ہوں. تو رسول اللہ کی طرح عزت کرنا کسی کی کیا کوئی بری بات ہے؟ یہاں تو اس نے یہ کہا کہ میں عمران خان کو رسول مانتا ہوں. ٹھیک ہے, تو پھر ایک بات ہوتی کہ جی آپ اس کو کچھ کہہ بھی سکتے تھے کہ اس نے گستاخی کی ہے. اس نے کوئی گستاخی بھی نہیں کی اور ان لوگوں نے مار مار کے اس شخص کو قتل کر دیا. اور اب اس قتل کی جو ذمہ داری ہے وہ کس کے اوپر ہے؟ مطلب میں کہتا ہوں کہ پورا پاکستان بلاسفمی کے چکر میں پاگل ہو گیا ہے اور کوئی لیول نہیں ہے جس کے اوپر جو ہے یہ لوگ یہ مان سکیں کہ یار تم جو ہو نا اسی لیول پہ انسان نظر آؤ گے. یہ چیز نظر ہی نہیں آ رہی. ہم لوگ بالکل ہی ایک مطلب عجیب قسم کی ایک اندھیر نگری کا شکار ہو گئے ہیں کہ کوئی شخص بھی سیف نہیں ہے. اب یہ ملا تھا اور یہ اچھا خاصا کوئی اور آرمی کا ملا تھا جس کا یہ آگے سے مرید تھا, یہ اچھا خاصا کوئی مسجد چلاتا تھا, سارا کچھ پی ٹی آئی کا سپورٹر تھا, مگر انہوں نے اس کو چھوڑا ہی نہیں, انہوں نے موقع ہی نہیں دیا. ایک بار آپ ویڈیوز آپ دیکھیں جا کے, میں نے شیئر کی ہیں ٹویٹر پہ, ایک بار کچھ لوگ اس کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور ابھی یہ بیچارہ زخمی ہے, تو کچھ لوگ اسے بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور شاید وہ بچانے میں کامیاب ایک لحاظ سے کچھ حد تک ہو جاتے ہیں, مگر لوگ دوبارہ اس کو پکڑ لیتے ہیں. اور پھر تیسری جو ویڈیو آخری میں اس کی قمیض اتاری ہوئی ہے, اسے ننگا کیا ہوا ہے اور لٹرلی اس کا جو سکل ہے نا وہ پچک کے اندر کی طرف گئی ہوئی ہے. مطلب آپ سوچیں کہ کس لیول کی بربریت اور گھٹیا حد تک پاکستان میں بلاسفمی کا بخار جا چکا ہے. کوئی لیول نہیں ہے, کسی شخص کو بھی یہ ایکسپلینیشن کا موقع دینے کو بھی تیار نہیں ہے, اور بات مولویوں تک آ گئی ہے. اب مردان اگر آپ کو یاد ہو, مردان وہی جگہ ہے جدھر 2 سال پہلے ہندو ٹیمپل جلایا گیا تھا. ٹھیک ہے جی, ہندو ٹیمپل ڈھا دیا گیا تھا, ایک چھوٹا سا ہندو ٹیمپل تھا, اور ہندو جتنے بھی مردان سٹی میں ہندو بزنس مین رہتے تھے وہ سارے کے سارے اس ہندو ٹیمپل کے ٹوٹنے کی وجہ سے وہاں سے چھوڑ کے بھاگ چکے ہیں. بھیا ختم ہوگی یہ بات. ٹھیک ہے, تو ایسا کیوں ہوا ہے؟ ایسا اسی لیے ہوا ہے کہ شدت پسندی کو اس لیول پہ لانے والا بھی مولوی ہے جس نے مردان شہر میں جو ہندوؤں کے پاس کاروبار تھا اس کو تباہ کرانے کے لیے ان کا مندر توڑوایا, خوف پھیلایا. تو بھائی اب آپ نے جن لوگوں کو یہ پاگل پن کتے پن کا انجیکشن لگایا تھا, اب دیکھو آج انہوں نے آپ کو کھا دیا. ہو سکتا ہے یہی مولوی انوالو ہو بیچ میں, کوئی پتہ نہیں ہے. اس مولوی کا بھی یہ بھی اس پہ خوشی کسی دن تالیاں اس نے بجائی ہو, لوگوں کو شاباش دی ہو. بھائی جب آپ نے خود باولے کتے پالے ہیں, ٹھیک ہے, بندہ پالتا ہے نا, کتا بھی کوئی بندہ ایسا پالتا ہے کہ جس کو کوئی تمیز ہو. جب آپ باولے کتے پال لیتے ہیں تو پھر تو یہی ہوتا ہے, اور آپ خود لوگوں کو باولے کتے بنا رہے ہیں, تو اب آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ لوگ ٹھیک ہو جائیں گے؟ لوگ کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے بھائی. لوگ ان سے دیکھیں, یاد رکھیں, لیڈر کا کام جو ہے نا لوگوں کو آؤٹ آف کنٹرول کرنا نہیں, لوگوں کو کنٹرول میں رکھنا ہوتا ہے, لوگوں کو ڈائریکشن دینا ہوتا ہے. ان مولویوں نے لوگوں کو کتوں کی طرح چھوڑ دیا ڈائریکشن لیس, اور جو ڈائریکشن نے ان لوگوں کو صرف دکھائی ہے وہ ایک ہی ہے کہ یار سر تن سے جدا, سر تن سے جدا, سر تن سے جدا. وہ سر تن سے جدا تو بھائی نہیں ہوتا. ٹھڈے مار مار کے, پتھر مار مار کے, ڈنڈے مار مار کے بندے کی ایک جسم کی ایک ایک ہڈی توڑ دیتے ہیں, یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہوتا ہے اصل میں. صحیح ہے, تو یہ چیز ہے جو ہو رہی ہے اور ہوتے چلے جا رہی ہے, اور یہی مولوی یہی چاہتے تھے. اور مولوی کیونکہ مولوی ان پڑھ اور جاہل ہوتا ہے, مولوی کو بات سمجھ نہیں آتی کہ جس طرح کا جب آپ زہر فصلوں میں بو دیں نا, یا فصلیں زہر کی بو دیں,
تو भैया वो बड़ी आसान सी एक बाइबल की मिसाल है कि कोई ऊंट कटारों से अंजीर नहीं तोड़ता, ठीक है। ऊंट कटारे उन उन जड़ी बूटियों और जंगली पौधों को कहते हैं जो फसलों में उग जाते हैं, ठीक है। तो जब आपने बोए ऊंट कटारे हैं, ऊंट उनको खाते हैं ना, मतलब, ठीक है, और कोई जानवर के लिए उनको खाना मुश्किल है, कांटों वाली चीज भी ऊंट खा जाता है। तो जब आपने बोए ऊंट कटा रहे हैं तो आप समझ रहे हैं कि आप उनसे खाएंगे? नहीं, आप नहीं खा सकते भाई। उनसे कोई वैशी शख्स ही फल तोड़ेगा, और वैशी भी नहीं तोड़ सकता। मैडनेस और केओस फैलाने वाले लोग जो होते हैं वो ये समझते हैं कि वो केओस की वेव को राइड कर लेंगे, मगर ये दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफी की बात है कि केओस की वेव को कोई भी कभी भी राइड नहीं कर सकता। केओस की वेव को सिर्फ राइड करता है केओस, और केओस और अनार्की किसी के दोस्त नहीं होते। मुल्ला भी केओस और अनार्की को कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है। अनार्की क्या पैदा करेगी, सन्स ऑफ अनार्की कैसे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो आप नहीं ये डिसाइड करेंगे कि वो क्या करेंगे। वो जब गर्दने काटने पे आएंगे, जब सर उतारने पे आएंगे, जब आपके पीछे वो पड़ेंगे, तो भाई आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस बात पे पड़ेंगे। तो मुल्ला जो खुद सन ऑफ अनार्की था, वो ग्रैंड सन ऑफ अनार्की से अब मार खाएगा। और इस भाई के साथ जो हुआ, मुझे शदीद अफसोस है इस बात का, मगर सोचने की बात यह है कि ये मुल्लाओं की लगाई हुई जो आग है ये कहां तक जाएगी। अभी हमें क्या पता ये बात कहां तक जा सकती है। क्या हम किसी मेजर मौलवी की लाश भी इस तरह देख सकते हैं? मुझे तो पूरा डर है कि हम देख सकते हैं। पाकिस्तान में बात वहां तक पहुंच चुकी है कि कोई मेजर मुल्ला भी मार सकता है। कैसे मरेगा, कौन मारेगा? मॉब लिंचिंग, देखिए, मॉब लिंचिंग एक बड़ी ही गंदी चीज है। आप इसका इंसाफ नहीं दे सकते, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, किसी को गुनाहगार नहीं ठहरा सकते। 100 बंदे ने मारा है तो आप किसी एक को क्लियरली कातिल भी नहीं कह सकते, ठीक है। और कुछ भी नहीं बनता मॉब लिंचिंग्स का, और यही चीज है जो बड़े अरसे से पाकिस्तान में हुए चली जा रही है और होती जाएगी। और हम कहां पाकिस्तान को देखेंगे इस सब के एंड पे, हमें नहीं पता। मगर ये बात याद रखिएगा कि पाकिस्तान में बातें शुरू हुई थी क्रिश्चियन से, अहमदियों से, और उन माइनॉरिटीज से बातें शुरू हुई थी भाई, जिनके लिए कोई आवाज नहीं उठाना पसंद करता, ठीक है। जब उनके ऊपर इल्जाम लगते हैं, वो लोग मॉब लिंचिंग, उनकी मॉब लिंचिंग होती है, तो आधा पाकिस्तान, क्या 90% पाकिस्तान शुक्र कर रहा होता है, कहता है अच्छा हुआ गुस्ताख रसूल मारे गए। अभी भी ये यही कहेंगे कि अच्छा हुआ गुस्ताख रसूल मारे गए। मगर मेन बात वो है कि जो मरे हैं उनको पता होता है ना कि वो गुस्ताख रसूल है कि नहीं। और इस बंदे ने क्या बात की थी, सिर्फ ये कहा था कि मैं, इमरान खान एक सच्चा आदमी है, मैं उसकी उसी तरह इज्जत करता हूं जिस तरह मैं रसूलुल्लाह की इज्जत करता हूं। यार इसमें क्या गुस्ताखी है भाई? उसने ये तो नहीं कहा ना कि मैं उसी तरह बेइज्जती करता हूं इमरान खान की जिस तरह मैं रसूलुल्लाह की करता हूं। तब आप कहते ना इज्जत करना, तो भाई इज्जत जो शख्स रसूलुल्लाह की करता, क्या दुनिया के किसी और शख्स की नहीं कर सकता? ये क्या बात हुई? क्या आप लोगों ने सिर्फ ये समझा हुआ है कि आपने, मतलब, ठीक है, वहदाहु ला शरीक, अल्लाह को तो कहा है कि अल्लाह की इज्जत में कोई शरीक नहीं हो सकता, अल्लाह के हक में कोई शरीक नहीं हो सकता। अब आपने रसूल की भी वही बात लगा दिया कि जो इज्जत रसूल की करता है वो किसी और की नहीं करेगा। मतलब कहां जा रहे हैं, पागलपन की किस लिमिट को जा रहे हैं, कहां टच हो रहा है ये मॉब मेंटेलिटी का? एंड क्या होगा और बनेगा क्या एंड पे? मुझे तो बहुत ही अफसोसनाक सिचुएशन दिखाई दे रही है। अफाफ, वेलकम, कैसी हैं आप? थैंक यू वेरी मच। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं। अभी गुफ्तगू हो रही थी, मौजू काफ़ी हॉट है और आज का ही मैंने सुनने में आया ये जो वाक़या हुआ है। जी जी। इंतहाई अफ़सोसनाक और काबिल मज़म्मत है। इस पे हम बरसों से लिखते आ रहे हैं, तवज्जो दिलाते आ रहे हैं, लेकिन एक ऐसा पागलपन है हमारे यहाँ जो जिसकी इंतहा पे पहुँच चुके हैं कि कुछ समझ नहीं आ रहा कि किस तरफ जाएँगे। वाक़ई जो सूरत-ए-हाल है कि एक शिद्दत है और वो ऐसी खौफनाक शिद्दत है, और फिर ये कहते हैं कि सवाल उठता है कि लोग जो हैं दीन से दूर हो रहे हैं। अब यही तो वजूहात है। जब ऐसा पागलपन नजर आएगा तो कौन होगा जो यहाँ खड़ा होना पसंद करेगा? एग्जैक्टली exactly, और यही है। देखिए, अब इन्होंने मौलवी मार दिया। अब ये शख्स मौलवी था, मौलवी था, आर्मी फैमिली से ताल्लुक था, एक आर्मी के मुल्ले का ये जो था शागिर्द था, और अब इन्होंने मार दिया उसको। देखिए, मतलब कहां मुख्तलिफ जाएगी ये बात? बड़ी बड़ा अजीब पागलपन है। जैसे गिद्धू बंदर नहीं, खुला पागल खाना। मतलब जो लोग, मुझे लगता है जो पागल खाने में है वो कतई नॉर्मल होंगे, जो बाहर है वो ज्यादा बड़े पागल हैं। मतलब पाकिस्तान इस वक्त खुला पागल खाना लगता है कि यानी ऐसे मॉब हैं कि आप बात ही नहीं कोई कर सकते। आपको याद होगा कुछ बरस पहले जो सियालकोट का वाकया हुआ था, उसमें दो भाइयों को जो हाफिज थे,
नौजवान भाई उनको मार के कुछ बरस इन्होंने नहीं, काफ़ी 12 बरस हो साल गए। हो हाँ गए उस जी, बात हाँ को। जी, मेरे लिए कुछ बरस ही मुझे लग रहे हाँ, हैं। तो हाँ, मुझे याद है कि उनको उल्टा लटका दिया था मार के बाकायदा, उनको चोर कह के और तौहीन का ऊपर उन पे डाल के, और बाद में जब उनकी फैमिली से उन्होंने बयानात दिए, उन्होंने कहा ये तो आपस के मामलात थे। ऐसा ही जब बहुत से और मामलात में हमें नज़र आता है कि जब इस तरह मॉब इकट्ठा होता है और मार देते हैं, सड़क पे फैसले कर देते हैं, और फिर हमारा जो पूरा समाज है वो इतना जजमेंटल है कि आप बात करके देखो, कोई भी ये 1 मिनट में आपके अच्छे-बुरे के फैसले, आपके मोमिन और काफ़िर होने के फैसले, आपके गुनाह-सवाब के फैसले, ये तो उनके हाथों पे, हथेलियों पे धरे हैं। ये 1 मिनट में आपको कुछ भी कह के मार सकते हैं। यही तो बात है ना कि बात कहाँ तक पहुंच गई है। हर तरफ से जो जहां से देखें आप, उसी एंगल से ये नजर आ रहा है कि लोग पागल हो चुके हैं, और पागल करने वाला मुल्ला है, पाकिस्तान की रियासत है, जिसने इस चीज को कंट्रोल में करने के लिए कुछ समझा ही नहीं है। वो समझते ही नहीं है कि उन्होंने इस चीज को कंट्रोल करना था, और उन्होंने अपनी जो जिम्मेदारी है उससे हाथ धो के और लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया, और अभी भी छोड़ा हुआ है, कल को भी छोड़ा हुआ है। आगे क्या होगा हमें इस बारे में कोई पता नहीं है, किस चीज के ऊपर जाके ये बात खत्म होगी। बड़ा मुश्किल मुझे तो ये लग रहा है कि मुझे तो कोई इस बात की उम्मीद अभी तक नजर ही नहीं आ रही है कि ब्लास्फेमी लॉ के मसले में या ब्लास्फेमी के मामले में जो पाकिस्तान में पागलपन पाया जाता है उस पर किसी सूरत भी कंट्रोल होगा। और जो सबसे बड़ी चीज है कि वो कैसे कंट्रोल हो ही नहीं सकता ब्लास्फेमी लॉ वाले मामले में या ब्लास्फेमी की एलिगेशन वाले मामले में, कि यार जब अवाम ने खुद मारना शुरू कर दिया तो इस केओस को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है। क्योंकि जब हर बंदा ये समझ लेगा कि हाँ मारना है हमने, और ये कहां पे तालीम हो रही है, क्या इनको नहीं पता कहां तालीम हो रही है? इनको 100% पता है कहां तालीम हो रही है। हर मस्जिद में जुम्मे के दिन, हर मस्जिद में नमाज के बाद ये तालीम हो रही है कि यार तोसी आले दुआले कोई देखा ना जिन्हें ब्लास्फेमी की थी तो उन्हें मार देना। मतलब ये परसेप्शन उन्होंने डेवलप कर दिया असल में। आप ये देखो, अभी आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, वो तो खैर खुला पागलखाना बन चुका है। आप अभी जो रिसेंटली ये जो वाक़या आप कुछ साल पहले ही हुआ था, आपको टीचर को मारा था इन्होंने, जो फ्रांस वाले वाक़ये पे जिसने ज़िक्र किया था, आपको हाँ, याद है ना अभी? अभी जी जी जी, गुज़िश्ता दिनों सैमुअल उसमें आप पैटी, हाँ जी, अब पिछले से पिछले उस साल की बात है। हाँ जी, अब उसमें देखें कि आप उसके बाद जो लोगों के जो तासुरात थे, वो कितना बरमला इज़हार किया गया था। उस दौरान मुझे याद है, उसी वाक़या के ऊपर हमारे यहाँ कनाडा में एक मस्जिद के इमाम ने जुमे की मस्जिद में खुतबा देते हुए उस चीज़ को प्रेज़ किया, और यही कहा कि जो गुस्ताख़ रसूल हो उसकी यही सज़ा होनी चाहिए। एक उस्ताद को, एक मुअल्लम को आप, एक स्टूडेंट उठ के, तालिब इल्म उठ के ऐसे मार दे, और उसको प्रेज़ कौन कर रहा है और कहाँ बैठ के कर रहा है। ये हम ये देखने वाली बात है वेस्ट के उन मुल्कों में जहाँ हम बड़ा अपने आप को सिक्योर समझते हैं, और ये बाकायदा खबर जो है अखबारों में आई, और लोगों ने इस पे कहा कि ये यहाँ बैठ के जो लोग ये बातें कर रहे हैं तो इनको कौन पट्टा डालेगा। मतलब ये आप सोचिए ज़रा कि जो यहाँ कर सकते हैं उन वो वहाँ कितने खुले छूटे होंगे। उनका वहाँ कौन मतलब वाली वारिस होगा। वहाँ तो मतलब पागलपन है ज़िंदगी के लिए, या कहते हैं जहाँ से भाग जाओ, या फिर बचना है तो खामोश होके बैठ जाओ। हम्म, यही है बस, अब क्या किया जाए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।